Hello, everybody. We are studying The Lost Child, written by Mulkraj Anand. This is for class ninth, and it has been adopted from Moments. It is supplementary reader. Now we'll study about The Lost Child. First, I will read and then I will make you understand the summary in Hindi, and lastly, I will provide you question answer. It is in two episode. First part. Now see. It was the festival of spring from the wintry shreds of narrow lanes and valleys emerged a galley clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. वसंत का पर्व था। शीतकाल में प्रसन्नचित्त लोग रंग बिरंगे परिधान में तंग गलियों में से बाहर निकल रहे थे। गांव का माहौल था। 3 कैरेक्टर हैं, एक छोटा बच्चा और अपने माता पिता। कुछ पैदल चल रहे थे उस गांव में, उस जगह कुछ घोड़ों में सवार थे, अन्य इधर उधर बैठे थे, कुछ बैलगाड़ियों में बैठे जा रहे थे। एक छोटा सा बालक खुशी से उछलता कुत्ता अपने पिता की टांगों के बीच से भागा जा रहा था। Come child, call his parents. He lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. He hurried towards his parent, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. रास्ता के साथ साथ कतारबद्ध दुकानें सजी हुई थी। खिलौने से आकर्षित होकर वह कुछ पीछे रह जाता था। उसके माता पिता पुकारा करते थे, आओ बच्चे, चलो बच्चे इधर आओ। वह अपने माता पिता की तरफ जाने की जल्दबाजी कर रहा था। उसके पैर माता पिता के बुलाने के अनुकरण करते थे। इसका मतलब हुआ कि जैसे उनके बच्चे का माता पिता पुकारते तो उसका पैर रुक जाता, लेकिन निगाहें इधर उधर, आंखें तिरछी करके कभी खिलौने पर, कभी खेल कूद की चीज़ें पर इधर टिकी रहती है। पैर तो रुक जाता, वो उसका मन नहीं मानता था, पैर मानता था, क्योंकि माता पिता पुकारते थे कि बच्चे इधर आ जाओ, मत जाओ। जब वो वहाँ पहुँच गया जहाँ उसके माँ बाप उसका रुक कर इंतज़ार कर रहे थे, वह अपनी दिली इच्छा का दमन नहीं कर सका। हालांकि फिर भी उनकी आंखें घुटती रहीं, छिप कर इनकार को भली भांति समझता था। I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit to the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, Look, child, what is before you? It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. मुझे वो खिलौना चाहिए, उसने अनुरोध किया अपने पेरेंट्स से। बच्चे ने, उसके पिता हमेशा की तरह बड़ी कड़ी नज़रों से आंखें तरेर कर उसकी ओर घूर कर देखा। उसकी माँ कोमल दिवस की तरह निस्वार्थ भाव से द्रवित होकर तथा उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली देते हुए बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे नीचे क्या है? यह फूल सरसों का खेत था जो समतल भूमि पर मीलों दूर, मीलों पिछले पिघले हुए सोने की भांति एक व्यापक खेत में फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still the wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping
up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." ड्रैगन मक्खियों का समूह अपने चमकदार बैगनी पंखों के साथ भिनभिनाता रहा, जो फूलों के मकरंद की तलाश में रास्ते में मक्खी या तितली के रास्ते को काट कर जा रहा था। बच्चा उसमें से किसी एक पर नज़र जमा कर देखता रहता था, और जब वह अपनी पंखुड़ियाँ स्थिर कर विश्राम करने के लिए कीड़े या तितली बैठ जाती तो वो उसे पकड़ने का प्रयास करता, परंतु जब वह लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने वाला ही होता तो वह फिर अपने पंखों को फड़फड़ाती उड़ जाती। तब उसकी माँ ने उसे वार्निंग दी, "अरे बच्चे, आओ फुटपाथ पर चलो।" He ran towards his parentally galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were streaming out from the hiding places to enjoy the sunshine. वो खुशी के मारे अपने माता पिता की ओर भागा तथा कुछ देर तक अपने माता पिता के साथ चला। फिर भी वह पीछे उन कीड़ों मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए पीछे रह गया था, जो अपने गुप्त घर से धूप सेकने के लिए बाहर निकल रहे थे। "Come, child, come," his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. आओ बच्चे, बच्चे आओ। उनके माता पिता पेड़ के कुंज में एक कुएं के किनारे बैठ गए। वहीं से बुलाया, वह उनकी ओर भाग कर गया। जब बच्चा उन पेड़ पौधों के बीच में घुसा तो नए खिले हुए पुष्प की बौछार हुई और वह अपने माता पिता को भूलकर वर्षा हो रही फूल की कलियों को अपने हाथे में समेटने लगा। तब उसे डोव, जो जंगली कबूतर होता, कि गुटरगू सुनाई दी और वह चिल्लाया, "द डोव, द डोव! देखो ये कबूतर है, कबूतर है!" कहता वह अपने माता पिता की ओर भागा। वर्षा हो रही कलियां जो थी उसके विस्मित हाथों से नीचे गिर गई। "Come, child, come," they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. उन्होंने बच्चे को पुकारा, "आओ बच्चे आओ," जो बरगद के वृक्ष के चारों ओर खुश होकर उछल कूद करने लगा। उसे लेकर वे सरसों के खेत में घूमकर जाने वाली तंग पगडंडी पर चल रहे थे, जो मेले की दिशा को जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के नज़दीक पहुँचे, बच्चे ने भीड़ से भरी हुई कई पगडंडियाँ देखी जो मेले की ओर जाती थी। पगडंडी बोलते गांव की सड़क को, और वह भ्रमित संसार जिसमें वह प्रवेश कर रहा था के प्रति पीछे हो रहा था, आकर्षित भी हो रहा था मेले के प्रवेश पर। A sweet-meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many-colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. "I want the barfi," he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. एक कोने में एक मिष्ठान मिठाई विक्रेता आवाज़ दे रहा था,
गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबियाँ, जो सोने चांदी के पत्थरों से सजी हुई मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ धक्कम धक्का से हो रही थी। बच्चा टकटकी लगाए आंखों से देखता रहा। बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसकी मनपसंद मिठाई थी बर्फ़ी। वह धीरे से भुनभुनाया, मन ही मन बोला, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। परंतु जब उसने बर्फ़ी मांगी तो वो समझता था कि उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे और कहेंगे कि तू चटोरा है। इसलिए वह बिना उत्तर के इंतज़ार किए आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistible drawn. He went towards the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. एक फूल विक्रेता ने आवाज़ लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी तरफ खींचा चला गया, टोकरी की तरफ गया, फूलों की टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों का ढेर पड़ा था, तथा कुछ भुनभुनाया, मुझे वह माला चाहिए। परंतु वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माँ बाप उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वह कहेंगे कि वे रास्ते हैं। इसलिए उत्तर का इंतज़ार किए बिना वह चलता गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. एक आदमी एक पोल, लकड़ी का लट्ठा बहुत बड़ा सा लेकर पकड़े हुए खड़ा था, जिसमें पीले, लाल, हरे तथा बैगनी गुब्बारे उस पर लटक रहे थे। बच्चा उनकी इंद्रधनुषी कलर से खींचा चला गया। उसके मन में उन सभी सिल्की रंग के गुब्बारों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उमड़ पड़ी, परंतु उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके माता पिता गुब्बारे कभी नहीं खरीद कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह इतना बड़ा है कि ऐसे खिलौने के साथ नहीं खेल सकता। इसलिए वह आगे चला गया। अब ये इस एपिसोड के बाद सेकंड एपिसोड डालूँगा। जब तक आप इसकी हिंदी को अच्छी तरह समझेंगे, और सेकंड एपिसोड के बाद क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। थैंक यू।